Good morning, students. So, today we are going to start our next topic of error, which is the combination of error. I hope you can able to understand the various terms related to the error. And now, today we are going to just calculate the error in the following situations. So, what do you mean by the combination of error? First, try to understand it. So the combination of error means suppose you have this rod. ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का क्या मतलब होता है? आपके पास ये एक रॉड है, ठीक है, ये वाली जो रॉड है, लेट द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज़ 2.3 सेंटीमीटर और मीटर, जो भी आपने कंसीडर करना है. द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज़ 2.3. Okay, so the length of the road I have denoted by a symbol A, and this one is your second road, and the length of this second road is 2, suppose, okay, 2 centimeter. So I have joined these two rods, ठीक है, और I just want to calculate the total length of the road. Okay, so what I'm trying to do is I am just trying to calculate the total length of this rod. So what we can do, we have simply we want to just calculate the length. For that we just calculate the length of first rod and then calculate the length of the second rod, and we simply add up these two quantities. When we add up these two quantities, then we get the value of the total length of the rod. This is as simple. Okay, so इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि जब भी हमने कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल इन दिस सिचुएशन वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रॉड. So in any situation, if we want to calculate any physical quantity, whether it is a length, it is a force, it is a density, तो आप जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करते हो, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम अदर फिजिकल क्वांटिटीज़. फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द डेंसिटी, okay, so density is the mass upon volume. So if you want to calculate the density, then you have to calculate mass, and then you have to calculate the volume. By calculating mass and volume, then you will get the value of density. For example, if you want to calculate the force, then you have to calculate, because force is equal to mass into acceleration. So while calculating the value of the force, you have to calculate first the value of mass and then the value of the acceleration. Okay, so while calculating the values of mass or acceleration or mass and volume in density and force, then you see that I've already told you that whenever you are trying to calculate any physical quantity, then there is a possibility of some errors in the measurement. वहाँ पे कुछ ना कुछ गलती के chances होते ही होते हैं. Okay, so suppose you are calculating the value of density na. So for calculation of the density, I have already told you, you need a value of mass and the value of volume. So while calculating these two values, there will be a chances of error in the calculation of mass, there will be a chances of error in the calculation of volume, and whenever there is a एरर इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, अगर मास और वॉल्यूम में आपका एरर आ गया, तो ऑब्वियस ही बात है जिस चीज़ की आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें भी तो एरर आएगा ही आएगा. सिंपल सी बात है. अब इस क्वांटिटी में कितना एरर आएगा? जितना इसमें एरर आया होगा और जितना इसमें एरर आया होगा, उसके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें एरर आता है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टोटल लेंथ को कैलकुलेट कर रही हूँ, तो मैंने ये चीज़ बतानी है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है. तो मुझे सबसे पहले इसकी लेंथ निकालनी, ये तो मैंने आपको रैंडम से नंबर लिखे हैं, मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, देन आई हैव टू कैलकुलेट दिस लेंथ. तो अगर इन दोनों लेंथ को जब मैं कैलकुलेट करूँगी, जब हम किसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो दोज वैल्यूज़ आर नोन एज मेजर्ड वैल्यू, वो मेजर्ड वैल्यूज़ होती हैं. तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इसकी मेजर्ड वैल्यू आएगी, फिर इसकी मेजर्ड वैल्यू आएगी. फिर जब आप इन दोनों की लेंथ को ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल टोटल लेंथ निकालनी है, तो इस रॉड की टोटल लेंथ को मैंने लिखा z के साथ, पूरी रॉड की लेंथ जो है, तो ये किसका कॉम्बिनेशन होगी? a प्लस बी का, लेंथ ऑफ फर्स्ट रोड प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड रोड. ठीक है, सपोज दीज आर द ट्रू वैल्यूज ऑफ द, इन रॉड्स की ट्रू वैल्यू ये है.
तो अगर आपके पास ट्रू वैल्यू आ जाए, जैसे इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी 2.3 + 2 दैट इज इक्वल टू 4.3, वो 4.3 आनी चाहिए। लेकिन 4.3 तो तब आएगी जब आपकी ये वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ट्रू, और ये वाली वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप मेजर कर रहे हो और इसकी वैल्यू आप 2.3 नहीं कैलकुलेट करते, या तो कम पढ़ लेते हो या फिर ज़्यादा पढ़ लेते हो, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कैलकुलेशन में क्या आ गया, एरर आ गया। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो तो दोनों चांसेस होते हैं, इधर आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, इधर आप कम पढ़ सकते हो। तो जब आप इसमें भी एरर आ जाएगा, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही तो ये बना है। लेंथ ऑफ रॉड तो ये जेड से रिप्रेजेंट किया, तो ये जो है ये इन दोनों से ही मिलके बना है। इफ देयर इज सम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए इन द मेजरमेंट ऑफ बी, देन ऑटोमेटिकली देयर विल बी सम एरर इन द वैल्यू ऑफ जेड। तो इसके z की वैल्यू में भी कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है आज के उसमें टॉपिक में, हमने ये देखना है कि जब भी हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ लेते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं, तो या तो वो किन्हीं क्वांटिटीज़ का एडिशन में होती है, या फिर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन में होती है। जैसे आप कोई चीज़ निकाल रहे हो, तो ज़रूरी थोड़े ना हर चीज़ आप निकालोगे तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ a + b। ठीक है, कई बार आप कोई चीज़ निकालते हो तो उसमें सब्ट्रैक्शन से भी तो वैल्यू निकलती है, जैसे a - b भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आप फोर्स का एग्जांपल है तो उसमें एडिशन नहीं है ना सब्ट्रैक्शन है, उसमें मास और एक्सेलेरेशन का क्या प्रोडक्ट है। तो आप जब फोर्स निकालोगे तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन। तो आप जब फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें प्रोडक्ट भी आता है। अब जैसे डेंसिटी है तो उसमें आपका ना प्रोडक्ट एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें क्या है, डिवीजन है। तो जब हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास सिचुएशंस बनती है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ किन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के एडिशन से बनती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज सब्ट्रैक्शन से बनती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे बनती है, डिवीजन से, और कुछ प्रोडक्ट से बनती है। तो हमने ये सारे डिफरेंट केसेस लेने हैं, और जब हम इन सारे डिफरेंट केसेस लेंगे और हम देखेंगे कि जब भी हमारे पास एडिशन का केस आएगा, सब्ट्रैक्शन का केस आएगा, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है उसमें हमने एरर कैलकुलेट करना है कि जो भी रिजल्टेंट वैल्यू होती है उसमें कितना एरर आता है। क्लियर? अब जैसे ये है, आप ये इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सॉरी डिवीजन में आपके पास दो वैल्यूज़। अब ये जो है ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है बट डिविजन्स में है। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो और वो फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको पास जो क्वांटिटीज़ है वो डिवीजन में है, तो इसमें एरर कैसे आता है। ठीक है, तो इसमें नेट एरर कितना आएगा। तो हमने ये सारे केसेस लेने हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमारे पास जो रिजल्टेंट एरर आता है, यानी कि ये है रिजल्टेंट एरर, नेट वैल्यू रिजल्ट में क्या आएगा, वो रिजल्टेंट एरर जो होता है वो कितना होता है और किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आपके पास जो भी रिजल्टेंट आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें आपने ये देखना है कि जो भी आपके पास फाइनल वैल्यू आ रही है उसमें टोटल जो एरर है, जैसे इसमें जो एरर है वो कितना होगा और किन किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेगा। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट आपका केस ले रही हूँ जिसमें मैं फिजिकल क्वांटिटीज़ ले रही हूँ, ये वाली एडिशन की, कि मेरे पास ये दो रॉड दी हैं। ठीक है, लेट ए की ट्रू वैल्यू 2.3 है, बी की ट्रू वैल्यू 2 है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रही हूँ, नोट्स में आपने इंक्लूड नहीं करना है ये। और बी की ट्रू वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, तो अब आपने इसकी टोटल लेंथ निकालनी है, तो आपको सिंपल सी बात है, लेंथ को मैंने किसके साथ लिखा, जेड के साथ रिप्रेजेंट किया, टोटल लेंथ को। ठीक है, तो इट इज़ द सम ऑफ ए प्लस बी, तो मुझे ए कैलकुलेट करना पड़ेगा और बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या चीज़ किया, मैंने सबसे पहले ए की बात की। तो मैं सबसे पहले ए को मेजर कर रही हूँ। तो आपको पता है जब आप किसी चीज़ को मेजर करते हो तो आपके पास ट्रू वैल्यू नहीं आती है, आपके पास मेजर्ड वैल्यू आती है। तो मैं एक एक का एग्जाम्पल लूँगी। ठीक है, एवरेज वगैरह नहीं निकालूंगी, मैंने ट्रू वैल्यू ऑलरेडी लिख दी आपको। ठीक है, ये आपके पास ट्रू, लेकिन ट्रू वैल्यू निकली कि कैसे, जब हम एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि लेट ट्रू वैल्यू ऑफ दिस रॉड इज़ 2.3। तो मैंने इसको सबसे पहले फर्स्ट केस में मेजर किया। तो जब मैंने इसको मेजर किया तो आपको पता है आपके चांसेस हो सकते हैं, आप वैल्यू ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, कम भी पढ़ सकते हो। मैं दोनों से एग्जांपल दूंगी, लेकिन इसी का एग्जांपल दूंगी, इसका सिमिलर चलेगा फिर। ठीक है, तो मैंने ए को लेट मेजर किया, और मैंने जब इसको मेजर किया तो इसकी मेजरमेंट करने पर इसकी वैल्यू 2.3 मैंने कैलकुलेट की। ओके, तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ ए और द मेजर्ड वैल्यू और द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए इज 2.3। अब ये तो ट्रू वैल्यू है ही नहीं, इसमें तो एरर है। तो अब हमने इसमें एरर निकालना है, तो इट इज़ द मेजर्ड वैल्यू। तो आपको पता है मैंने एरर निकालना सिखाया है। whenever we are subtracting the true value from the measured value then we get the absolute error। तो मैंने क्या किया, ट्रू वैल्यू में से एब्सोल्यूट सॉरी जो मेजर्ड वैल्यू है उसको माइनस किया। ऑब्वियसली बात है, आप
3 उसकी एक्चुअल वैल्यू आप 2.1 पढ़ रहे हो, यानी कि 0.2 आप क्या पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं। तो आपने क्या किया, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस किया, तो आपके पास एरर आ जाएगा। तो एरर की वैल्यू आई 2.3 माइनस 2.1 विच इज इक्वल टू प्लस 0.2। ओके, तो आपके पास ये आया एरर। ठीक है, अब आपके पास मेजर्ड वैल्यू कैसे, ये है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको लिखना सीखना है। अब आपके पास मेजर्ड वैल्यू कितनी थी, अब ये तो ट्रू वैल्यू है, पर आपने ट्रू वैल्यू थोड़ा ना कैलकुलेट किया, आपने तो मेजर्ड वैल्यू निकाल है। तो अब आप जो रिजल्ट लिखोगे यहाँ पे 2.3 थोड़े ना लिखोगे, आपने जो कैलकुलेट किया वैल्यू आप उसी को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे आप 2.1 ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए जो है वो 2.3 है, लेकिन आप कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, 2.1 कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आया 2.1। तो आप, अब हम मेजर्ड वैल्यू को इन टर्म ऑफ ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे, ये आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है। अब इसको मैंने ट्रू वैल्यू की टर्म में लिखना है, तो ट्रू वैल्यू तो मेरे पास 2.3 है। ठीक है, तो अब 2.1 को 2.3 तो लिख नहीं सकते, तो उसको हम कैसे लिखते हैं। तो अगर इसको मैंने ट्रू वैल्यू की टर्म में लिखना है, तो ऑब्वियस ही बात है 2.3 2.1 लिखना है मैंने, और ये ट्रू और एब्सोल्यूट की टर्म में लिखना है, तो सिंपल सी बात है, ट्रू वैल्यू और ये एरर। अगर मैं 2.3 में से 0.2 को माइनस कर दूं, तो आपके पास 2.1 ही तो आएगा। ठीक है, मतलब मैंने 2.1 को ट्रू वैल्यूज और एब्सोल्यूट एरर दोनों की टर्म में लिख दिया बिना इसको छेड़े हुए। तो 2.1 को मैंने लिखना है, तो मैंने लिखा 2.3 विच इज़ द ट्रू वैल्यू, और उसमें से माइनस किया 0.2 विच इज़ द एब्सोल्यूट एरर, सो इट इज़ 2.1। ठीक है, तो आप इस मेजर्ड वैल्यू को इन टर्म ऑफ ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये मेजर्ड वैल्यू और ये ट्रू वैल्यू, इसको कैसे लिखा मैंने, ट्रू वैल्यू को किसके साथ रिप्रेजेंट किया है, ए के साथ। ओके, बीच में क्या लगा है, माइनस साइन। एब्सोल्यूट एरर को आप सबको पता है, हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए के साथ, लास्ट लेक्चर्स में मैंने पढ़ा दिया। तो आपने यहाँ लिखा ए माइनस डेल्टा ए विच इज़ द 2.1। अगर मैंने लिखा है मेजर्ड वैल्यू को, ए इज द ट्रू वैल्यू, 0.2 इज द एब्सोल्यूट एरर, तो 2.1 को हम ऐसे लिख रहे हैं। समझ आ गया, यानी कि मैंने ट्रू वैल्यूज को भी यूज कर दिया और लिखा किसकी टर्म में, मेजर्ड वैल्यूज की टर्म में ही लिखा। क्लियर। अब सपोज कर लो आपने मेजर्ड वैल्यू इसको फिर से मेजर किया, और अब आप मेजर कर रहे हो तो उसकी वैल्यू आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने इसकी मेजर्ड वैल्यू 2.5 पढ़ी इसी की, क्योंकि मैं आपको कम पढ़ने वाला एक केस भी बता रही हूँ, ज़्यादा भी, क्योंकि चांसेस तो दोनों गए हैं। तो आपने 2.5 उसको रीड आउट किया। अब इसमें आप एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, तो क्या करोगे, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करोगे, देन यू विल गेट माइनस 0.2, इट इज़ द एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब आपने मेजर्ड वैल्यू को, दिस इज द मेजर्ड वैल्यू, और अब आप इस मेजर्ड वैल्यू को जैसे यहाँ लिखा है मैंने, इन टर्म ऑफ ट्रू वैल्यू और इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे। तो 2.5 को आपने 2.3 और 0.2 की टर्म में लिखना है, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। आप लिखेंगे 2.3 विच इज़ द ट्रू वैल्यू। ओके, ट्रू वैल्यू 2.3, लेकिन आपको 2.5 बनाना है, तो ऑब्वियस बात है उसमें प्लस क्या करना पड़ेगा, 0.2, वेयर 0.2 इज द absolute error. So when you write true value with absolute error, then you will get 2.5. ठीक है, सो 2.3 क्या है, अगेन क्या चीज़ है मेरे पास, ट्रू वैल्यू है, प्लस 0.2 क्या है, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब ध्यान से देखो मैंने क्या चीज़ बोला, कि जब भी आप मेजर्ड वैल्यू निकालते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे इस रॉड की लेंथ ले रहे हैं हम, तो जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू निकालते हैं, तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ होती है, इधर वी कैन रीड आउट द वैल्यू मोर, ठीक है, देन द ट्रू वैल्यू, और इधर वी कैन रीड आउट द वैल्यू लेस देन द ट्रू वैल्यू। ठीक है, दो चांसेस होते हैं। तो मैंने आपको अगर कम पढ़ा है उसका एग्जाम्पल भी दे दिया है, ज़्यादा पढ़ा तो उसका एग्जाम्पल भी दे दिया है। तो अगर आपके पास मेजर्ड वैल्यू को इन टर्म ऑफ ट्रू वैल्यू लिखना हो, तो हम ऐसे लिखते हैं, ट्रू वैल्यू में से हम देखो, इसमें भी ट्रू वैल्यू, अगर आप कम पढ़ रहे हैं अगर आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो दोनों में आपका फर्स्ट नंबर तो ट्रू वैल्यू ही लेता है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। हाँ, सो आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है इसको, 2.3 दोनों में आपके पास क्या है, ट्रू वैल्यू तो आ ही रही है। सिर्फ फ़र्क क्या है, कि अगर आप कम पढ़ रहे हैं तो एरर को क्या करना है, आपने माइनस करना है। अगर आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो एरर को क्या करना है, आपने प्लस करना है। ठीक है, तो आपके पास देखो ट्रू वैल्यू तो दोनों में रहती है,
लेकिन एक केस में माइनस एरर आता है और एक केस में प्लस एरर आता है, ये वैल्यूज़ भी सेम रहती है। यानी कि जब हम एक जनरल एग्जांपल लेंगे, यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ ए, ठीक है, ए को आपने जनरल लिखना है, तो अगर आप एक जनरल टर्म लिखते हैं तो आपके पास जनरली एक सिंपल सी टर्म बनती है कि अगर आप कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को रीड आउट करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप रीड करते हो, तो उसमें जब हम ट्रू वैल्यू उसकी टर्म में लिखते हैं तो वो वैल्यू हम ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं और वो वैल्यू हम कम भी पढ़ सकते हैं। अगर इन दोनों का जनरल फॉर्मूला बनाए तो ए एज इट इज़ रहेगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस डेल्टा ए मीन्स कोई भी आप मेजर्ड वैल्यू लेंगे तो उसको जब हम ट्रू वैल्यू की टर्म में लिखेंगे तो ट्रू वैल्यू में एरर जो है वो ऐड भी हो सकता है, ट्रू वैल्यू में से एरर क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो जब भी हम मेजर्ड वैल्यू को इन टर्म ऑफ ट्रू वैल्यू लिखते हैं तो मेरे पास ये फॉर्मूला लिखता है। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है। सिमिलरली अब आपने क्या किया, ठीक है, ए को आपने कैलकुलेट किया, तो आपने देखा ए को जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप ट्रू वैल्यू नहीं ले रहे हो, ट्रू वैल्यू में एरर आ रहा है। तो आपको मैंने क्या बोला, ट्रू वैल्यू में अगर एरर आएगा तो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ए को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो अब ए कौन सी वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है, पर ट्रू तो आपने पढ़ी नहीं है, उसमें तो एरर आ रहा है। ठीक है, ट्रू वैल्यू में से आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं और कम भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आगे बता रही हूँ कि कैसे लिखेंगे। ए आप सिर्फ तभी लेके चलेंगे जब आपके पास ट्रू वैल्यू आए, क्योंकि ए जो है वो 2.3 है, लेकिन आप ए की वैल्यू 2.1 भी रीड कर सकते हैं, 2.3 भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, 2.1 रीड करेंगे तो ये आएगा, 2.3 रीड करेंगे तो ये आएगा, दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो हम तो जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं, तो इन दोनों को जनरली हमने क्या लिखा, ए, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ये आपकी मेजर्ड वैल्यू है, इट इज़ द मेजर्ड वैल्यू, क्योंकि ये किसके बराबर है, ये 2.1 के बराबर है, और ये किसके बराबर है, 2.5, ये मेजर्ड वैल्यू है, और ये कौन सी है, ये ट्रू वैल्यू है। ठीक है, तो अब आपने लिखना है ये वैल्यू, जैसे आपको लिखा था z इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये तो ट्रू वैल्यू तो आपने पढ़ी नहीं, आपने ए में क्या निकाल दिया, आप तो एरर ले रहे हो उसमें, तो आप ए को क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, इट इज़ द मेजर्ड वैल्यू एंड इट इज़ द ट्रू वैल्यू। अगर आपके पास ये ठीक पढ़ रहे हो, आप 2.3 पढ़ रहे हो और ये आप 2 पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, 2.3, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2। अगर आप इन दोनों की ट्रू वैल्यू ही पढ़ते तो ऑब्वियस सी बात है 2.3 प्लस 2 तो आपके पास सही वैल्यू आती, z मतलब बिल्कुल एक्यूरेट आता। लेकिन अब आपने a की वैल्यू 2.1 या 2.5 अगर पढ़ी है, क्योंकि एरर के चांसेस होते हैं, तो इसमें क्या आ गया, एरर आ गया, जिसमें ए क्या है, ट्रू वैल्यू है, ध्यान रखना, और एरर क्या है मेरे पास, डेल्टा ए, डेल्टा ए है एरर इसमें। ठीक है, ए एरर नहीं है, तो डेल्टा ए मेरे पास एरर आ गया। अब सिमिलरली आपको क्या पढ़ना है, बी पढ़ना है। तो जब आप बी की वैल्यू पढ़ोगे, जब आप बी की वैल्यू पढ़ोगे तो उसमें भी तो एरर के चांसेस हैं। आप बी की वैल्यू कम भी पढ़ सकते हैं, बी की वैल्यू ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। अब बी की वैल्यू अगर आप कम पढ़ेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ मैं ए की बात कर रही हूँ, यहाँ बी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप वैल्यू जो है बी की कम पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे आप उसको, बी माइनस डेल्टा बी, where b is the true value and delta b is the error, absolute error in b। डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन ए है। ठीक है, अगर आप उसकी वैल्यू ज़्यादा पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जब ज़्यादा पढ़ोगे तो आप क्या लिखोगे, बी प्लस डेल्टा बी, क्योंकि जैसा मैंने ये केस दिया वैसे ही आएगा। इसकी वैल्यू आप एक एग्जाम्पल बना दो, यहाँ पे 1.8 पढ़ ली है आपने, ठीक है, तो फिर एरर निकाल दो, फिर यहाँ पे आपने ज़्यादा पढ़ ली तो 2.3 का एग्जाम्पल बना दो, तो आपकी इक्वेशन यही बनेगी। बस फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पे हम ए यूज़ कर रहे हैं, वहाँ बी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट की ट्रू वैल्यू ए है, और जब आप बी की पढ़ोगे तो बी की ट्रू वैल्यू बी है, तो फॉर्मूला आपका बी से बनेगा। और ए में एरर जो है एब्सोल्यूट, उसको डेल्टा ए से लिखते हैं, बी में जो एरर आएगा उसको हम डेल्टा बी से लिखेंगे। ठीक है, तो अब आपने बी की वैल्यू भी क्या पढ़ी, चांसेस उसमें भी गलती किए हैं, तो अगर आप बी में एरर लिखेंगे तो बी में एरर लिखने का फॉर्मूला क्या बनेगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो अब जब ये दोनों सही वैल्यू होती है तो आपके पास ये वैल्यू भी ठीक आती, लेकिन इन दोनों में ही गड़बड़ आ गई, इसमें भी एरर आ गया, इसमें भी एरर आ गया, तो इन दोनों के सम से ही ये बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इन दोनों में एरर आ गया है तो आपकी ये वैल्यू तो ठीक हो ही नहीं सकती, यानी कि इसमें भी क्या आएगा, एरर आएगा। तो अब इसमें एरर कैसे लिखेंगे, जैसे ये लिखा है z प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेड में एरर ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब आप वैल्यू ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं और वैल्यू क्या कर सकते हो, आप कम भी पढ़ सकते हो। तो इसको लिखोगे आप z प्लस माइनस डेल्टा जेड।
ठीक है, तो अब आपने बताना है कि z में जो है वो एरर कितना आएगा। क्लियर। तो अब मैंने ये लिखा, मेजर्ड वैल्यू आपको लिख दी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बी में कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा बी, ये आपकी कौन सी वैल्यूज होती हैं, दीज आर योर मेजर्ड वैल्यू। ध्यान रखना है ये मेजर्ड वैल्यू है, और ये कौन सी है, ये ट्रू वैल्यूज है, और ये कौन सी है, पूरी की पूरी ये मेजर्ड वैल्यू है। मेजर्ड वैल्यू में दोनों आती है, ट्रू वैल्यू भी आती है और साथ में एरर्स भी आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिखा z इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो अगर आप लिखोगे 2.3 प्लस 2 तो आपके पास बिल्कुल ट्रू वैल्यू आएगी। लेकिन इसमें क्या है, एरर है, 2.3 प्लस माइनस 0.2 का एरर आ रहा है। ठीक है, वैसे जब आप 2 में करोगे तो 2 में भी प्लस माइनस एरर आएगा, तो एरर को मैंने डेल्टा बी से लिखा। तो अगर इन दोनों में एरर आएगा तो ऑटोमेटिकली किस में एरर बन जाएगा, आपका जेड में भी एरर बन जाएगा। ठीक है, तो अब जनरल फॉर्मूला क्या बनाते हैं आप, जैसे जेड है तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये ट्रू वैल्यू होती है। लेकिन जब इसमें एरर आ रहा है तो ये ऐसे लिखा जा रहा है, बी में आ रहा है तो ऐसे लिखा जा रहा है, तो जब दोनों में एरर आएगा तो आपके पास नंबर ये बनता है। ठीक है, अब हमने सिर्फ ये चीज़ निकालनी होती है कि जो जेड में एरर आ रहा है वो एरर जो है, और याद रखना रिजल्ट में सिर्फ एरर ही होना चाहिए, कि जो आपकी जेड में एरर आ रहा है वो एरर जो है वो किस किस नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वो जो लास्ट में मेरे पास फाइनल रिजल्ट आता है वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, सिर्फ आपने ये चीज़ निकालनी है। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट आपका केस आता है, जिस फर्स्ट केस में आपको ये बताया है कि व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व द सम ऑफ टू ऑब्जर्व्ड फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम टाइम। अगर आपके पास फर्स्ट आता है कि अगर आप कोई नंबर निकाल रहे हो और वो दो फिजिकल क्वांटिटीज का सम है, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेट ए एंड बी, ठीक है, या स्मॉल लिख लो यहाँ पे, लेट ए एंड बी आर मेजर्ड टू गेट द फाइनल रिजल्ट जेड। जैसे ए और बी जो है ये ट्रू वैल्यूज है, इनको जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास जेड आएगा। ठीक है, ये ट्रू वैल्यूज है, पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ट्रू वैल्यूज तो आती नहीं, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देखो, डेल्टा ए डेल्टा बी, ए में भी एरर आता है, ए में कैसे लिखते हैं हम, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा बी इज द एब्सोल्यूट एरर इन बी। तो लेट डेल्टा ए डेल्टा बी जो है वो ए और बी में जो है वो एब्सोल्यूट एरर है, देन ऑटोमेटिकली ए और बी में एरर आएंगे तो जेड में भी एरर आएगा। तो जेड में एब्सोल्यूट एरर को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा जेड के साथ। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू जो है ए की, अगर आपको मेजर्ड वैल्यू लिखानी हो, ये ट्रू वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू ऐसे लिखते हैं, तो ए की जो मेजर्ड वैल्यू आएगी वो आएगी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी की मेजर्ड वैल्यू क्या आएगी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ए एंड बी आर द ट्रू वैल्यूज, और इसकी ट्रू वैल्यूज की जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मेरे पास मेजर्ड वैल्यूज आती हैं, और मेजर्ड वैल्यूज में कुछ ना कुछ एरर के चांसेस होते ही होते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू को हम हमेशा इन टर्म ऑफ ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं। तो ए का मेजर्ड वैल्यू ये बनी और बी की मेजर्ड वैल्यू मेरे पास ये बन गई। क्लियर। तो अब आपके पास ये और ये चेंज हो जाएगा, जब इसकी मेजर्ड वैल्यू लिखोगे तो जेड में भी एरर आ जाएगा। तो उसको मैंने ऐसे लिखा, जेड की जगह क्या आ जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी। वेरी सिंपल। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, प्लस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करोगे कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसमें ट्रू वैल्यूज को आपने अलग कर देना है और एरर्स को अलग कर देना है। तो इसमें ट्रू वैल्यूज कौन सी है, एक ए है और बी है, दीज टू आर ट्रू वैल्यूज, और एरर्स को सेपरेट करना है। देन वी गेट जेड डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए, यहाँ पे प्लस है, ओके, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू जेड, ए प्लस बी जो है वो जेड के इक्वल है, तो आप इसको चेंज कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल लिखा है मैंने, दिस इज इक्वल टू जेड, प्लस माइनस इसमें से कॉमन लिया मैंने, तो प्लस माइनस आप कॉमन लेंगे तो डेल्टा ए। अब आपको बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर ब्रैकेट के अंदर से आप प्लस निकालते हो तो भी ब्रैकेट के अंदर प्लस ही रहता है, और अगर माइनस निकालोगे तो भी ब्रैकेट के अंदर क्या रहता है, प्लस रहता है। अगर यहाँ से आप प्लस कॉमन निकालोगे तो भी ब्रैकेट के अंदर ये टर्म प्लस की रहेगी, अगर माइनस निकालोगे तो भी ये टर्म कैसी रहेगी, प्लस की रहेगी। सिमिलर फॉर दिस टर्म। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर से प्लस या माइनस कुछ भी निकले, ब्रैकेट के अंदर टर्म्स जो है वो प्लस की रहेंगी। तो मेरे पास ये टर्म भी प्लस की बनेगी, और जो सेकेंड टर्म है वो भी क्या बनेगी, प्लस की।
ये मैंने z की वैल्यू कहाँ से पुट की, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब बहुत सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड में z है, ये भी z है, ये ट्रू वैल्यूज है। याद रखना रिजल्ट में मेरे पास ट्रू वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, एरर ही आना चाहिए। प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल आउट, देन यू विल गेट डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब ये दोनों ही एरर है। ठीक है, डेल्टा a एब्सोल्यूट एरर था, डेल्टा b एब्सोल्यूट एरर था, और z जो था वो एरर इन z था। तो मेरे पास क्या चीज़ आई, बोला जब भी हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं और इसकी मेजरमेंट करते हैं तो z में कितना एरर आता है। तो बोला z में जो एरर आता है वो डेल्टा z आता है, जो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। सिंपल सी बात है, इसमें कितना एरर आएगा, जितना a में एरर होगा प्लस जितना b में एरर होगा, इन दोनों के एरर का सम जो है वो z में हमें अपीयर होता है। ठीक है, तो देखो डेल्टा z इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b। जितना a और b के अंदर एब्सोल्यूट एरर होगा उतना एब्सोल्यूट एरर का सम जो है वो हमें कहाँ दिखेगा, z में दिखेगा। उतनी ही गलती हमें दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, मीन्स द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। दैट इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर।